3 ہفتے بعد شام ڈل رہی تھی مگر گرمی نے جیسے جانے کا نام نہ لیا تھا۔ ہوا بالکل ساکت تھی اور درخت بھی جنبش کھڑے تھے، جسے تپش سے ہار کر خود بھی تھک گئے ہوں۔ کھڑکی کے پار گارڈن میں سب کچھ وہی تھا مگر شام کی دھوپ اب درختوں کی اوٹ میں سمٹ رہی تھی اور اسے ایک اداس سایہ سا پھیلنے لگا تھا۔ ابیرہ کمرے میں بستر پر سرہانے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، نہ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی ابیرہ کے، نہ فون، بس نظریں کھڑکی سے پرے پھیلے گارڈن پر جمی تھی۔ ایک پرندہ اڑ کر آیا اور شاخ پر تھوڑی دیر چہکنے کے بعد اڑ گیا۔ شاخ لرز کر ساکن ہو گئی مگر ابیرہ کی نظروں میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ خوشی تھی نہ غم، بس ایک بے نام سا خالی پن تھا جو پچھلے 3 ہفتوں سے اس کے وجود میں ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کا ہاتھ آہستہ سے اٹھا اور سینے کے اس مقام پر جا کر رک گیا جہاں کپڑے کے نیچے ایک نشان چھپا تھا۔ زخم اگرچہ بھر چکا تھا مگر اس کی کسک ابھی تک تازہ تھی۔ انگلیاں ایک لمحے کے لیے وہاں ٹھہر گئی جیسے اس درد کو یاد کر رہی ہو، اور پھر بے بسی سے واپس گود میں آ گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ اس کی بے چین نظریں بار بار پاس پڑے فون کی طرف اٹھتی اور پھر مایوسی سے لوٹ آتی۔ وہ جانتی تھی کہ فون کرنے والا آج بھی حسب معمول دیر کرے گا۔ یہ روز کا معمول تھا، وہی طویل انتظار، مگر اس کے پاس اس انتظار کو ختم کرنے کی ہمت بھی تو نہیں تھی، کیونکہ شاید اسی اذیت ناک انتظار میں ہی اس کا دل کا بچا کچا سکون چھپا ہوا تھا۔ لائٹ یلو رنگ کے سوٹ میں جس کے دامن پر چھوٹے چھوٹے پرنٹڈ پھول کھلے تھے، وہ سرہانے سے لگی بیٹھی تھی۔ شفون کا دوپٹہ کندھوں سے ڈھلا ہوا تھا اور بالوں کی سادہ سے چوٹی پشت پر پڑی تھی۔ بیماری نے اس کے چہرے کی رونق ضرور چھین لی تھی مگر سادگی اور نقاہت میں بھی ایک حسن تھا۔ تبھی پاس رکھا فون لرزا۔ ابیرہ کا ہاتھ اضطراری طور پر اس کی طرف بڑھا، اسکرین پر آریان کا نام جگمگایا تو اس نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری طرف ایک گہرا سانس لیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ آریان کی آواز میں ایک مخصوص ٹھہراؤ تھا۔ ٹھیک ہوں۔ دوا وقت پر لی؟ جی لی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ ابیرہ نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں اندھیرا اب گہرا ہو چکا تھا۔ آپ کے فون کا انتظار۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ تھوڑا بزی تھا اس لیے، آریان نے وضاحت دینی چاہی۔ آپ روز ہی بزی ہوتے ہیں، ابیرہ نے اس کے بعد بیچ میں کاٹ دی۔ اس کے لہجے میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک تھکن تھی۔ اسی لیے تو دن بھر میں صرف ایک ہی بار فون کرتے ہیں۔ کیا کروں، تم سے دور رہنے کے لیے خود کو بزی رکھنا پڑتا ہے۔ ابیرہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے جیسے کوئی لفظ اندر ہی روک لیا ہو۔ آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ تمہارے باپ کو مجھ پر آتا ہے؟ وہ چپ رہی، جیسے یہ لفظ پہلے بھی کہے تھے اور پہلے بھی ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں آریان، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ آواز میں ایک دبی ہوئی تلخی تھی۔ یہ سب تمہارے باپ نے کروایا، اس نے مجبور کیا مجھے، ورنہ آریان ایک سیکنڈ تم سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ابیرہ کچھ نہ بولی، فون کان سے لگا تھا مگر آواز جیسے کہیں دور سے آ رہی تھی، کسی ایسی جگہ سے جہاں وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی اور کمرے میں صرف 2 سانسوں کی خاموشی تھی، ہزاروں میل دور وہ بھی خاموش تھا۔ چائے کا مگ تھامے آریان اسکاٹ لینڈ کی اس بلند عمارت کے شیشے کے سامنے کھڑا تھا جہاں سے باہر کا پورا منظر آتا تھا نظر۔ چمکتا دوپہر کا سورج، سڑکوں پر بھاگتی گاڑیاں، اپنی زندگیوں میں مصروف لوگ، سب کچھ وہی تھا مگر اس کے اندر کچھ تھما ہوا تھا۔ ابیرہ کی آواز ابھی بھی کانوں میں تھی۔ آپ کے فون کا انتظار؟ اس نے مگ کو ہاتھ میں تھوڑا مضبوطی سے پکڑا اور شیشے سے باہر دیکھتا رہا۔ آپ بدل گئے ہیں۔ ابیرہ کی آواز آہستہ تھی مگر اس آہستگی میں ایک تیز دھار تھی۔ صرف تانے دینے کے لیے فون کرتے ہیں؟ کیا محبت کے 2 الفاظ بھی نہیں ہوتے آپ کے پاس کہنے کے لیے؟ آریان نے چائے کا مگ شیشے کے پاس رکھی میز پر رکھ دیا، ہاتھ جیب میں ڈالا۔ باہر دھوپ چمک رہی تھی مگر اندر کچھ بجھا سا تھا۔ الفاظ ختم نہیں ہوئے۔ ابیرہ کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک دبا ہوا درد تھا۔ بس جب باہر بار کہنے لگتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ تم وہاں ہو اور میں یہاں، اور یہ دوری تمہارے باپ نے دی ہے، تب الفاظ حلق میں رک جاتے ہیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ابیرہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آریان؟ ہاں، بس ایک بار کہتے۔ خاموشی، ایک لمبی خاموشی۔ کیا؟ وہ جو میں سننا چاہتی ہوں، مس کرتا ہوں بہت۔ ابیرہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ 3 ہفتوں سے وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ ہسپتال کے سفید دیواروں میں، رات کے اندھیرے میں، اس کمرے کی خاموشی میں بس یہی 3 لفظ۔ اور آریان کو پتا تھا، شاید جان بوجھ کر نہیں کہتا تھا، شاید اسے معلوم تھا کہ وہ ٹوٹ رہی ہے، مگر آج جیسے اس کی تڑپ پر اسے رحم آ گیا اور اس نے کہہ دیا۔ ابیرہ کے دل میں جو سکون اترا وہ سکون آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ اس کا ایک آنسو گال پر اترا، پھر دوسرا۔ اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تم رو رہی ہو؟ یہ سوال نہیں تھا، آریان کو پتا تھا۔
अबीरा ने जल्दी से आंसू पोंछे, जैसे वो देख सकता हो नहीं। अबीरा, बस नाम लिया। वो इस एक नाम में इतना कुछ था कि अबीरा का गला भर आया। हाँ, इसने आहिस्ता से मान लिया। दूसरी तरफ खामोशी थी, मगर वो खामोशी खाली नहीं थी, इसमें कुछ था जो अल्फाज से नहीं कहा जा सकता था। पहले ही बहुत तकलीफ़ में हूँ, अब रोकर मज़ीद तकलीफ़ क्यों दे रही हो खुद को। बाहर शाम मज़ीद गहरी हो गई थी। गार्डन के दरख्त अब साए बन रहे थे। हवा ने एक करवट ली और खिड़की के पर्दे हिले, हल्के से लहराए। अबीरा ने नज़र खिड़की की तरफ उठा ली। तकलीफ़ तो पहले से है आर्यन। इसने दुपट्टे के कोने से आंखें पोंछी। आपकी आवाज़ सुनकर कम होती है, ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ एक लम्हे की खामोशी थी। हज़ारों मील दूर आर्यन अभी भी शीशे के सामने खड़ा था। बाहर धूप थी, मगर उसके चेहरे पर कुछ और था। जल्दी से ठीक हो जाओ, उसने आहिस्ता से कहा, मगर लहजे में कुछ तो ख़ास था। अबीरा मुस्कुराई आंसुओं के साथ। आप मेरे पास आ जाएं या मुझे अपने पास ले जाएं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। आर्यन ने शीशे से बाहर देखा। बाहर धूप थी, लोग थे, जिंदगी थी, मगर इसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया है, उसने आहिस्ता से कहा। मैं तो खुद इस लम्हे के लिए बेकरार हूँ जब तुम मेरे पास होगी, मगर तुम्हारे बाप की अकड़ कम हो तभी ये मुमकिन है ना। प्लीज़ आर्यन। अबीरा ने दुपट्टे का कोना मुट्ठी में भींच लिया। वो मेरे बाबा है, आप इस तरह इनका नाम न लें। ठीक है जी, जो हुक्म। लहजे में तलखी उतरी, मगर जिस तरह उन्होंने अस्पताल में मेरी इंसल्ट की, मैं जितना झुक सकता था झुका, अब और नहीं। अबीरा की आंखें भर आईं। तो फिर क्या समझूं, आपने मुझसे किनारा कशी कर ली है, ऐसा कभी सोचना भी मत। आर्यन की आवाज़ सख्त हुई। आर्यन अपनी चीज़ों को आसानी से नहीं छोड़ता। तो मैं आपके लिए एक चीज़ हूँ। आर्यन ने आंखें बंद की। एक लम्हे के लिए मुझे इन किताबी बातों में उलझाने की ज़रूरत नहीं अबीरा। तुम मेरे लिए क्या हो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। इसी बहस से बचने के लिए कभी कभी फ़ोन इग्नोर हो जाता है। फ़ोन इग्नोर नहीं होता आर्यन। अबीरा की आवाज़ कांपी। मुझे इग्नोर करते हैं आप, बड़े बड़े दावे किए थे, कहाँ गए वो सब। बाहर गार्डन में हल्की हवा चली, पर्दा लहराया। अबीरा ने नज़र खिड़की की तरफ उठाई, मगर कुछ नज़र नहीं आया। आंखें धुंधली थी। दावे तो तुमने भी बहुत किए थे। आर्यन की आवाज़ में थकन थी कि अपने बाबा से बात कर लूँगी, मना लूँगी, मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी हो जाऊँगी। तो मैंने कदम कब पीछे लिए हैं। अबीरा की आवाज़ भर आई। आपको ज़रा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ़ से गुजरी हूँ इन 3 हफ्तों में। गोली लगी थी मुझे, ऐसा दर्द था जो बयान से बाहर था। कभी कभी सोचती थी कि मर जाना ज़्यादा आसान है, मगर आपको तो बस इस बात का एहसास तक नहीं। स्कॉटलैंड में आर्यन के हाथ से मग मेज़ पर रखा गया था, आहिस्ता से, मगर इस आहिस्तगी में एक तूफान था। हाँ, क्योंकि आर्यन बेहिस है ना। आवाज़ में दर्द की गहरी लहर थी। अस्पताल में रात दिन दरवाजे पर बैठा रहा, लम्हा लम्हा तुमसे मिलने को तरसता रहा। न भूख थी न प्यास। तुम्हारे बाबा के सामने जो हाथ जोड़े घंटों खड़ा रहा, मगर वो जल्लाद नहीं माना। आर्यन प्लीज़। अबीरा की आवाज़ तेज़ हुई। मेरे बाबा के लिए एक लफ्ज़ और गलत मत बोलिएगा, वो बड़े हैं आपसे। आर्यन लम्हे भर को खामोश हो गया। बाहर स्कॉटलैंड की धूप अभी भी चमक रही थी, मगर इसका चेहरा पत्थर हो चुका था। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, हमेशा से, उसने आहिस्ता से कहा। तुम्हें अपने बाबा की तकलीफ़ होती है, मेरी नहीं। मेरी मोहब्बत तुम्हें कभी नज़र नहीं आई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर गार्डन में अंधेरा फैल रहा था। शाम मुकम्मल ढल चुकी थी और अबीरा की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसे कह सकते हैं आप, कैसे? गले में आंसू अटक गए थे, आवाज़ घुटने लगी थी, अल्फाज निकलना बंद हो गए थे, सिसकियाँ बंधने लगी। हज़ारों मील दूर आर्यन ने आंखें बंद कर ली। एक हाथ शीशे पर टिका दिया। बाहर धूप थी, मगर इस लम्हे इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो जितना चाहे सख्त दिल बनने की कोशिश कर ले, मगर अबीरा की सिसकियाँ से बर्दाश्त नहीं होती थी। प्लीज़। इसकी आवाज़ धीमी हो गई। रोना बंद करो प्लीज़। मगर अबीरा से रुका नहीं जा रहा था। तुम्हारा रोना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। आर्यन की आवाज़ भारी हो गई। मुझे नहीं पता किसकी गलती है। अबीरा की आवाज़ सिसकियों में डूबी हुई थी। मगर आर्यन, मेरी मोहब्बत पर शक मत करें। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, मगर वो मेरे बाबा हैं। इनका दिल तोड़कर आपको नहीं पा सकती। इनके कदमों में बैठूंगी, बात करूंगी, हमारे रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी, ये वादा है मेरा। अबीरा अभी बोल ही रही थी कि अचानक कमरे के बाहर कदमों की आहट आई। वो सुनती रही। फिर दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। तबरीज़ खान कमरे की दहलीज खड़े थे। नज़र सीधी बैठी बेटी पर थी। सूजी हुई आंखें, गाल पर आंसुओं के निशान, हाथ में फ़ोन।
बाप का दिल बैठ गया। दरवाज़ा पहले से खुला था, आवाज़ बाहर जा रही थी। सिसकियाँ सुनकर कदम खुद ब खुद अंदर आ गए थे, वरना तबरेज़ खान की आदत नहीं थी कि बेटी के कमरे में बिना इजाज़त दाखिल हो। अबीरा ने नज़र उठाई और रंग उड़ गया। दूसरी तरफ आर्यान भी खामोशी महसूस कर चुका था। इसकी मुठ्ठियाँ भिज गई, आ गया चल्लाद। वो बड़बड़ाया, मगर अबीरा इसकी सरगोशी सुन चुकी थी। बाबा, अल्फाज हलक में रुक गए। तबरेज़ खान ने एक लम्हा बेटी को देखा। रोती हुई कमज़ोर, 3 हफ्ते पहले जो गोली लगी थी इसका निशान अभी भी था। और यहाँ की किसने रुलाई थी वो जानते थे। आगे बढ़े, फ़ोन हाथ में लिया, स्क्रीन पर नाम देखा और कान से लगा लिया। तुमने मेरी बेटी को फ़ोन करने की जुर्रात कैसे की? आवाज़ में बर्फ़ थी। जब मना किया है कि दूर रहो, दफ़ा हो जाओ इसकी ज़िंदगी से, तो एक सीधी बात समझ नहीं आती? तबरेज़ खान का लहजा आग उगल रहा था, अपनी बीवी से बात कर रहा था। आर्यान ने सामने पड़ी मेज़ को ज़ोर से ठोकर मारी, फिर एक कदम आगे बढ़ा। आवाज़ जब आई तो धीमी थी, मगर इस धीमेपन में एक ऐसी धार थी जो हड्डी तक उतरती है। और जब दिल चाहेगा फ़ोन करूँगा, ये मेरा हक़ है और आप मुझसे ये हक़ नहीं छीन सकते। इंतहा के बदतमीज़ हो तुम, इसलिए मुझे जहर लगते हो। आर्यान ने एक खोखला कहका लगाया, फिर कुर्सी पर बैठ गया, सर पीछे टिकाया। आवाज़ जब आई तो इसमें आग नहीं थी, ये बर्फ़ थी। मुझे आपको शहद लगने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरी बीवी आपके पास है, इसलिए अकड़ है, मगर बहुत जल्द इसे इतना दूर ले जाऊंगा कि सारी ज़िंदगी तड़पते रहेंगे। तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई गई? तबरेज़ खान की आवाज़ बर्फ़ से भी ठंडी हो गई। अब की बार मेरी बेटी के बाल को भी छू कर दिखाओ। हाथ ना काट दिए तो तबरेज़ खान मेरा नाम नहीं। आर्यान के लहजे में तंज उतरा। ओहो, मैं तो डर गया। वो सीधा हुआ, कोहनियाँ घुटनों पर टिकाई। आपको क्या लगता है ऐसी गीदड़ धमकियों से आर्यान खान डर जाएगा? तबरेज़ खान ने एक लम्हा लिया। जब बोले तो आवाज़ में गुस्सा नहीं, अफसोस था, और अफसोस कभी कभी गुस्से से ज़्यादा काटता है। तुम अफजल खान के बेटे हो, मगर बाप वाली कोई खूबी नहीं उतरी तुम में। अलबत्ता फूफी की हर बुरी आदत ज़रूर ले ली, वही बदतमीज़ी, वही तहजीब से बाहर। मगर क्या? आर्यान ने बीच में काटा। वो उठ खड़ा हुआ, आवाज़ अब भी धीमी थी, मगर हर लफ्ज़ एक वार था। बताएं ना, बेटी छुपा लेंगे, पुलिस भेजेंगे, सलाखों के पीछे डलवाएंगे, हथकड़ियाँ लगवाएंगे। ये बूढ़े हाथ कर ही क्या सकते हैं? एक लम्हे की खामोशी। ये बूढ़े हाथ अपनी बेटी की हिफाजत कर सकते हैं? तबरेज़ खान की आवाज़ कांपी, मगर लहजा नहीं कांपा। दोबारा मेरी बेटी को फ़ोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाए, आपसे बुरा तो वैसे भी कोई है नहीं। आर्यान के लहजे में लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तुम कभी मेरी बेटी के लायक हो ही नहीं सकते। कहाँ तुम बदतमीज़, बदतहज़ीब, और कहाँ मेरी तरबियत याफ्ता बेटी। तुम्हारा और इसका मेल ऐसे है जैसे एक तरफ गदला पानी का गटर और दूसरी तरफ आब ज़मज़म। तबरेज़ खान की आवाज़ में ना ऊंच थी ना तलखी, बस एक ऐसा सुकून था जो काटता है। आर्यान का जबड़ा भिंच गया। गटर का पानी? लफ्ज़ कान से टकराया और अंदर उतर गया, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे किसी ने गर्म सलाख ठंडे हाथ से पकड़ा दी हो। वो इस तरह इसके अल्फाज का आदी नहीं था। बाप के तंज सुने थे, वो भी इसलिए कि बाप का हक होता है, मगर वो भी एक हद तक। वो फिर घर में भी कोई इस लहजे में बात करने की जुर्रात नहीं रखता था। बोर्ड रूम्स में लोग इसके सामने संभल कर बैठे थे, मुलाजिम नजरें चुराते थे, और जो मिलने आते थे वो अल्फाज तोल कर बोलते थे। आर्यान खान को किसी ने आज तक औकात नहीं दिखाई थी, और आज एक बूढ़े आदमी ने बग़ैर आवाज़ उठाए, बग़ैर गर्म हुए, इसे गटर के पानी से तशबीह दे दी थी। हाथ में फ़ोन भीजता जा रहा था। अंदर कुछ भड़का, मगर अल्फाज नहीं आए, और यही खामोशी इसे सबसे ज़्यादा नागवार लगी। और फिर बंद हो गया। आर्यान के कान में आवाज़ गूंजती रही, मगर वो फ़ोन कान से हटा न सका। कुछ लम्हे बस वैसे ही खड़ा रहा। तबरेज़ खान ने फ़ोन बंद कर दिया। इसके मुंह पर लोग इसके काल के लिए दिनों इंतज़ार करते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, वक्त मांगते थे, और जब वो फ़ोन करता तो वो पहली घंटे पर उठाते थे। दूसरी घंटे की नौबत कम ही आती थी। मगर आज एक शख्स ने बीच बात में फ़ोन काट दिया, जैसे वो कोई हो ही नहीं, जैसे इसकी बात सुनने की जहमत भी गवारा नहीं की। आर्यान ने आहिस्ता से फ़ोन नीचे किया। जबड़ा अब भी भिंचा हुआ था, सांस अभी भी भारी थी, मगर आंखों में जो आग थी वो अब शोला बन रही थी। दूसरी जाने तबरेज़ खान जा चुके थे। इस लड़के से बहस करना अपनी तौहीन है। ज़बान की तेज़ी से ये कुछ भी काट सकता था। ऐसे शोले से हाथ जलाना बेकार था। उन्होंने नज़र अबीरा पर डाली, वो रो रही थी।
आंसू साफ कर रही थी मगर थम नहीं रहे थे। दोनों के दरमियान जो तल्ख बातें हुई वो इसे घबराने पर कर रही थी। एक तरफ इसका शौहर था जिसे इसके दिल से कबूल कर लिया था, दूसरी तरफ इसके बाबा थे जिनका दिल तोड़ने का तसव्वुर भी वो नहीं कर सकती थी। वो सब सुलझाना चाहती थी मगर सब कुछ उलझता चला जा रहा था। इसका वजूद कपकपा रहा था। अबीरा, रिलैक्स हो जाओ। तबरेज़ खान बेटी के करीब बैठ गए और बिना कुछ कहे इसे अपने सीने से लगा लिया। अबीरा का वजूद एक लम्हे के लिए ढीला पड़ गया था, जैसे बहुत देर से थकी हुई थी और आखिरकार कहीं टेक मिल गई हो। मेरा बच्चा, इनकी आवाज़ नरम थी मगर अंदर नाराज़गी साफ थी। जब मैंने मना किया है कि इस शख्स से बात नहीं करनी तो फिर क्यों फ़ोन सुना? एक हाथ बेटी के बालों पे थपथपा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो घबराए नहीं, पैनिक ना हो। बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ समझाना भी मोहब्बत से होता है। बाबा, सॉरी। अबीरा हिचकी के दरमियान बोली, रोना बंद करो। उन्होंने हाथ की पुष्ट से नरमी से आंसू साफ किए। रोते कमज़ोर लोग हैं और मेरी बेटी कमज़ोर नहीं है। अबीरा ने गहरी सांस ली। बाबा प्लीज़, आज एक बार मेरी बात सुने। हिचकियों में लफ्ज़ टूट रहे थे। नाराज़ मत होइएगा, बस एक बार सुन ले। तबरेज़ खान आहिस्ता से उठकर खड़े हो गए। बात ज़रूर सुनूंगा। आवाज़ में एक भारी ठहराव था। मगर शर्त है, ये नहीं कहना कि मेरी बेटी इस शख्स के साथ रहना चाहती है जिसने तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब की, हमारी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाई और जिसे आज भी कोई पछतावा नहीं है। इसके साथ रहने के मुतालबे के अलावा तुम जो कहोगी सर आंखों पर। उन्होंने दोनों हाथ कमर पर बांधे और खिड़की के पार देखने लगे। बाहर शाम मुकम्मल ढल चुकी थी। गार्डन में अंधेरा था और कमरे में एक बाप और बेटी के दरमियान वो खामोशी थी जिसमें बहुत कुछ कहा जाना बाकी था। बाबा, वो मुड़े नहीं। अबीरा आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर से उतरी। कदम लड़खड़ा रहे थे, सीने में हल्का खिंचाव था मगर रुकी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब आई और पीछे से इनकी कमर से लिपट गई। तबरेज़ खान के हाथ कमर पर बंधे रहे मगर सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। बाबा, आप हमेशा समझाते थे ना। अबीरा की आवाज़ भराई हुई थी कि रिश्ते चाहे बेकार भी हों मगर इन्हें निभाने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। खिड़की के बाहर हवा चली, पर्दा लहराया और कमरे में खामोशी और भी गहरी हो गई। तो बाबा, गला भर आया। मैं भी तो वही कोशिश कर रही हूँ जो आपने सिखाया। तबरेज़ खान की पीठ अकड़ी रही मगर आंखें कहीं और थी। मतलब कि आप मान रही हो कि ये रिश्ता बेकार है? तबरेज़ खान आहिस्ता से पलटे। अबीरा ने अपनी बात का ये मतलब नहीं निकाला था मगर बाबा ने निकाल लिया था। नहीं बाबा, वो जल्दी से बोली। आवाज़ में घबराहट थी। मैं ये नहीं कह रही थी। तो फिर क्या कह रही थी? तबरेज़ खान की नज़र बेटी के चेहरे पर थी। आवाज़ नरम थी मगर सवाल तेज़ था। अबीरा के होंठ कांपे। वो जवाब देना चाहती थी मगर अल्फाज उलझ गए थे। जो कहना था वो हलक में अटक गया। बाहर रात उतर आई थी। गार्डन में अंधेरा फैल चुका था और कमरे में बाप और बेटी एक दूसरे के सामने खड़े थे। दरमियान में बहुत कुछ था जो कहा नहीं जा रहा था। बताओ बेटा, बात का मतलब क्या है? अबीरा ने नजरें झुका ली। अपने बाबा के सामने ये एतराफ़ करना कि वो आर्यान से मोहब्बत करने लगी है गले का फंदा बन रहा था। इसके बाबा शर्मो हया वाले, इनके सामने ये अल्फाज कहना नामुमकिन लग रहा था मगर कहना था आर्यान के साथ किए वादे की खातिर, इस रिश्ते की खातिर जिसे वो बचाना चाहती थी। इसने हिम्मत जुटाई और आहिस्ता से ज़ख्म वाली जगह पर हाथ रखते हुए ज़मीन पर बैठ गई और बाबा के पाँव पकड़ लिया। अबीरा, बेटा ये क्या कर रही हो? उठो उठो ऊपर। तबरेज़ खान घबरा गए। नहीं बाबा। वो मजबूती से पाँव थामे बैठी रही। पहले मेरी बात सुने। मैं नहीं उठूँगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाबा, मैं जानती हूँ आपने मेरे लिए जैसे हमसफ़र का तसव्वुर किया था, आर्यान वैसे नहीं है और आप अपनी जगह बिल्कुल बजा है। आवाज़ कांप रही थी मगर रुकी नहीं। ये रिश्ता जिस तरह जुड़ा था इस पर आपकी नफ़रत की मोहर लगाना बिल्कुल फितरी है। मगर बाबा, इसने बदला लेने के लिए भी निकाह किया। अगर ना करता तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। इसने गलत को सही करने के लिए कदम उठाया, मुझ पर एहसान किया। तबरेज़ खान के हाथ भिंच गए मगर वो खामोश रहे। बाबा, इसने मेरे लिए ख़ुद को बहुत बदला है और वो बुरा इंसान है। तबरेज़ खान के हाथ भिंच गए मगर वो खामोश रहे। बाबा, इसने मेरे लिए ख़ुद को बदला है, वो बुरा इंसान नहीं है। बस जिस सोचने से पाला है वो सोच जहरीली है। इसने इसे जहरीला कर दिया। मगर बाबा, वो बदल रहा है। मैं इसके साथ रहूँगी तो मज़ीद बदल जाएगा। आवाज़ टूट रही थी मगर हिम्मत नहीं टूटी। जैसे भी हैं अब मेरे शौहर हैं। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती। लफ्ज़ तबरेज़ खान पर तेज़ाब की तरह उमड़ रहे थे मगर उन्होंने पूरे सुने।
बात ख़त्म हुई तो उन्होंने आहिस्ता से अबीरा के कंधे पकड़े और नरमी से बेड पर बिठा दिया, ज़ख्म का ख्याल रखते हुए। इस वक्त भी इन्हें अपनी बेटी के ज़ख्म की तकलीफ़ का एहसास था, मगर जो तकलीफ़ इनके अंदर थी शायद वो बेटी महसूस नहीं कर सकती थी। तबरेज़ खान ने गहरी सांस ली, दोनों हाथ कमर पर बंधे थे, चेहरे पर वही मोदबाना वक़ार जो हमेशा से इनकी पहचान था, मगर आंखों में एक बाप का दर्द साफ नज़र आ रहा था। रोती हुई बेटी को देखते रहे, कुछ देर खामोश रहे। अभी तक तुम्हें क्या लगता है बेटा? आवाज़ में तलखी नहीं थी, बस एक भारी ठहराव था कि मैं तुम्हारा घर ख़राब करना चाहता हूँ। अबीरा ने नज़रें उठाई। इस लड़के में अगर मुझे कोई खूबी नज़र आती तो मैं कभी ये कदम न उठाता। वो आहिस्ता से कमरे में चलने लगे, कदम सोचे हुए थे। जब मुझे पता चला कि ये अफजल खान का बेटा है तो मैंने दिल को समझा लिया था। सोचा था अपनी बेटी का घर आबाद करने की कोशिश करूँगा, मगर बेटा रुके। एक मर्द का अपने फैसलों पर मजबूत रहना बहुत ज़रूरी होता है, और इस लड़के में वो खूबी मेरी तजुर्बाकार आंखों को कहीं नज़र नहीं आई। ऐसा नहीं है बाबा, बेटा ऐसा ही है। उन्होंने नरमी से मगर मजबूती से कहा, ज़रा मेरी जगह खड़ी होकर देखो। वो जज्बाती है, लाउबाली है, अपने फैसलों को वक्त और मर्जी के हिसाब से बदलने वाला है। ऐसे लोग वक्त आने पर चट्टान बनकर साथ खड़े कभी नहीं रह सकते। जब वक्त की तेज़ आंधी चलती है तो इस लड़के जैसी चट्टानें सबसे पहले ज़मीन बोस हो जाती हैं। अबीरा कुछ ना बोली। तबरेज़ खान खिड़की के करीब आ गए। बाहर रात पूरी तरह से उतर चुकी थी, आसमान पर सितारे जगमगाने लगे थे। एक मर्द के पास चाहे दुनिया की कोई आसाइश ना हो, मगर अगर इसमें यह खूबी हो कि वो अपने पैरों पर, अपने फैसलों पर चट्टान की तरह खड़ा रह सकता है, तो ऐसे मर्द का हाथ बिना झिझक थाम लेना चाहिए। उन्होंने पलटकर बेटी को देखा, और जब मुझे नज़र आ रहा है कि इस लड़के में ये खूबी नहीं तो कैसे तुम्हें कुएं में धक्का दे दूँ। कमरे में सन्नाटा था। अबीरा की आंखें भरी हुई थीं, मगर इस बार आंसू नहीं बहे थे। शायद बाबा गलत नहीं कह रहे थे, शायद इनकी तजर्बाकार आंखें वो देख रही थीं जो अबीरा की मोहब्बत नहीं देख पा रही थी। मगर वो खुद भी तो गलत नहीं थी। जहाँ से वो देख रही थी वो इसे आर्यान में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसे यकीन था कि वो साथ निभाने वाला इंसान है, मगर ये बात वो अपने बाबा को कैसे कहती? पूरी कोशिश के बावजूद अल्फाज हलक में अटक कर रह गए थे। वो चाहती तो आर्यान की वकालत कर सकती थी, बहस कर सकती थी, मगर कदमों की बेड़ी वही हया की कदीम लकीर थी जो इसके और बाप के रिश्ते के बीच खिंची हुई थी। इसे लगता था कि बेटी की नज़रों का बाप के सामने झुक जाना ही इस रिश्ते का असल मान है, और मोहब्बत के हक़ में दलीलें देना इस माँ को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ था। यही वो फितरी झिझक थी जो उसे बोलने नहीं दे रही थी। एक ऐसी खूबसूरत रुकावट जिसके बगैर बाप और बेटी का रिश्ता शायद इतना मोतबर न रहता। बाबा प्लीज़, मैं अभी तुम्हारी माँ को भेजता हूँ, दवाई खाओ और सो जाओ, बस इतना कहा। वो तेज़ कदमों से कमरे से बाहर निकल गए। वो समझ चुके थे, मगर जो वो समझे थे वो ये था कि आर्यान ने इनकी बेटी को मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। कम से कम तबरेज़ खान के लिए तो यही माया जाल था। बाबा, अबीरा ने आवाज़ लगाई। बाबा प्लीज़ मेरी बात तो सुने। मगर दरवाज़ा बंद हो गया। वो वहीं बैठी रही, फिर एक सिसकी ले, फिर दूसरी, और फिर आवाज़ बुलंद होती चली गई। अब सिसकियाँ नहीं थी, दिल का बोझ था जो बह रहा था। क्यों नहीं समझ रहे आप? क्यों नहीं समझ रहे? दोनों हाथ चेहरे पर रख लिए। मैं भी तो इससे प्यार करती हूँ, इसके बगैर नहीं रह सकती। बाबा वो बदल जाएंगे, उन्होंने बदला है खुद को। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ वो थी। वो इसका दर्द हाथ उठे, आंखें बंद कर दी। अल्लाह मियाँ मेरी मदद करें, बस यही अल्फाज थे। बार बार सिसकियों के दरमियान टूटे हुए दिल की पुकार जो सिर्फ ऊपर वाले तक जा सकती थी। बाहर रात गहरी हो चुकी थी और कमरे में अकेली अबीरा रब से मदद मांग रही थी। पाकिस्तान में रात अपने पूरे जोबन पर थी। आसमान सितारों की चादर ओढ़े खामोश खड़ा था, मगर हज़ारों मील दूर स्कॉटलैंड में अभी शाम का धुंध लगा गहरा होना शुरू हुआ था। खिड़की के बाहर ठंडी हवाओं के झोंके कदीम पथरीली इमारतों से टकरा रहे थे, मगर आर्यान के अंदर एक ऐसी आग लगी थी जिसे वहाँ की बर्फानी हवा भी ठंडा नहीं कर सकती थी। फ़ोन पर अबीरा के बाबा की वही जहर से भरी आवाज़ अभी तक इसके कानों में गूंज रही थी। इसने दांत पीसते हुए मोबाइल की तरफ फेंका। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और मोटियाँ इस जोर से भींची हुई थीं कि पूरे सफ़ेद पड़ने लगी। अकड़, वो दहाड़ा। वो इसके साथ ही इसका दायां मुक्का पास रखे नफीस और महंगे गुलदान पर पूरी क़ुव्वत से जा पड़ा था। शीशे की किरची किरची होने की आवाज़ कमरे के सन्नाटे को चीर गई थी, मगर आर्यान को जैसे किसी दर्द का एहसास ही ना हुआ था। इसके हाथ से खून की एक बारीक धार बहने लगी, मगर इसकी नज़रें सामने दीवार पर जमी थी
जहाँ उसे तबरेज़ खान का वो मुतकब्बर चेहरा नजर आया था। अगर मैंने आपकी ये अकड़ मिट्टी में ना मिलाती तबरेज़ खान, तो मेरा नाम भी आर्यान खान नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर उसमें जहर भरा हुआ था। आप मुझे गटर का पानी समझते हैं ना, तो याद रखिएगा, इसी गटर के पानी के साथ आपकी बेटी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारेगी। मैं इसे आपके इस बुलंद व बाला महल से निकाल कर हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँगा। आप फिर आपका गुरूर पाश पाश हो जाएगा। उसने एक गहरा सांस लिया। उसके लहजे में सर्द महर इंतकाम था जो किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था। मेज़ चाय का खाली कप रखा था, मगर इसके बावजूद आर्यान का हालत कांटों की तरह चुभ रहा था। इसने झपट कर पानी का गिलास भरा और एक ही सांस में पी लिया। मेरी गलती थी, मुझे अबीरा को कभी पाकिस्तान लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। वो दान पीसते हुए खुद कलामी कर रहा था। जितना अच्छा बनता था बन गया था। इससे ज़्यादा शराफत अब मेरे बस में नहीं थी। इसकी नज़रें सामने दीवार पर लगी इस पोशीदा हकीकत को ढूंढ रही थी जिसे सिर्फ वो देख सकता था। अबीरा मेरी जान, अब तैयार रहना। अब मैं तुम्हारे बाप के इस गुरूर के हिसार को तोड़कर तुम्हें अपने पास ले आऊँगा, हमेशा के लिए। अब चाहे तुम मेरे सोने के पिंजरे में रो, तड़पो, चिल्लाओ, या मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि वक्त गुजरने के साथ तुम अपने हर पुराने रिश्ते को भूल जाओगे। ये मेरा तुमसे वादा है। अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं, तीसरा कोई नहीं। इसी लम्हे इसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी जहाँ से खून तेज़ी से बहकर फर्श पर गिर रहा था। दर्द का तो इसे एहसास तक ना था, मगर अपनी नफीस तबीयत के हाथों मजबूर होकर वो उठा और दरवाजे से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। मेज़ पर सामान फैला कर वो बड़ी महारत से ज़ख्म साफ करने लगा, मगर इसकी रूह का ज़ख्म अब भी रिस रहा था। इसने पास पड़ा फ़ोन उठाया। लॉक स्क्रीन से लेकर होम स्क्रीन तक हर जगह अबीरा ही तो थी। तस्वीर में वो दोनों एक साथ खड़े थे। अबीरा ने अपना सर इसके कंधे पर टिका रखा था और उसके चेहरे पर एक बेफिक्री सी मुस्कुराहट थी। तुमसे दूर रहना मेरे लिए किस कदर तकलीफ है मैं तुम्हें कैसे बताऊं। इसने स्क्रीन पर मौजूद अबीरा के चेहरे को छुआ। तुम पूछना चाहती हो कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मगर तुम तो वो हो जिसे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जा सकता। तुम तो मेरी हर सांस के साथ चलती हो। मैंने सारम के कहने पर ख़ुद को तुमसे दूर कर लिया, ये सोच करके शायद तुम्हारे बाप के दिल में कोई नरमी आएगी, कुछ बेहतरी होगी। मगर मैं गलत था। कमरे की दीवारें और वो कीमती फर्नीचर इसकी बुलंद आवाज़ को जले हुए लहजे के गवाह थे। जहाँ वो अब किसी को कुछ सही साबित करने के मूड में नहीं था, वो फैसला कर चुका था। 3 हफ्ते बीत चुके थे। यारम खाना पहले से काफ़ी बेहतर था। ज़ख्म भर रहे थे, मगर रूह पर जो चोट लगी थी इसका निशान अभी तक बाकी था। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देखने के बाद सर की चोट को गहरा बताते हुए मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया। अस्पताल से तो पहले हफ्ते ही छुट्टी मिल गई थी, मगर बासिक खान और रुतबा बेगम ने इसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था। वो शहर के हंगामों से दूर अपनी छोटी सी दुनिया को समेट कर फार्म हाउस पर आ गए थे ताकि पुरसकून माहौल में यारम की मुकम्मल देखभाल हो सके। इन दिनों रुतबा बेगम का सारा वक्त बावर्ची खाने और यारम के कमरे के चक्कर काटने में गुजरता। हेल्दी खाने, ताज़ा फलों के जूस और यखनी के प्यालों ने यारम की जिस्मानी नकाहत तो दूर कर दी थी, मगर इसके अंदर की बेकली का इलाज किसी हकीम के पास नहीं था। इंशा अपनी जुलबुली बातों और शोखियों से भाई का दिल बहलाने की हर मुमकिन कोशिश करती। कभी इसे ज़बरदस्ती हंसाती तो कभी पुरानी यादों के पिटारे खोल बैठती, मगर यारम का दिल 2 पार्टों में दरमियान पिस रहा था। एक तरफ एजल थी, इसकी बीवी, जिसने इन 3 हफ्तों में पलटकर ये तक न पूछा कि वो जिंदा भी है या नहीं। इसकी इस संगदिली ने यारम के अंदर एक अजीब सा सर्द गुस्सा भर दिया था, और दूसरी तरफ वो पाकीज़ा सी मोहब्बत जिसे वो मौत की दहलीज पर छोड़ आया था। अगरचे अरूब से होने वाली गुफ्तगू इसे ये इत्मीनान दे चुकी थी कि अबीरा अब ख़तरे से बाहर है, मगर इसे खुद देखने की तरफ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही थी। बासिक खान ने अभी अरूब के घर जाने से साफ इनकार कर दिया था। इनका मानना था कि अभी यारम की सेहत किसी भी किस्म की तलखी या बहस बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आज की शाम कुछ मुख्तलिफ थी। यारम अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक था। इसी खुशी में रुतबा बेगम ने फार्म हाउस के कुशादा गार्डन में डिनर का एहतमाम किया। आसमान पर चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। सितारों की कहकशां से ने ज़मीन पर जैसे नूर की चादर बिछा दी थी। फार्म हाउस के वसी सहन में रात की रानी की भीनी भीनी खुशबू रची बसी थी। दरख्तों की शाखों पर लटकी छोटी छोटी पीली लाइट्स ऐसे लग रही थी जैसे जुगनुओं ने वहाँ बसेरा कर लिया हो। घास पर सफ़ेद मलमल के गिलाफ चढ़े गद्दे और गाँव तक ये लगाकर बैठने का इंतज़ाम किया गया था।
دور کہیں گاؤں کی خاموشی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی جو اس ماحول کی فطری خوبصورتی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ لکڑی کے تخت پر رکھے مٹی کے برتنوں سے اٹھتی گرم کھانوں کی خوشبو بھوک بڑھا رہی تھی، اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جب چہرے سے ٹکراتے تو روح تک کو آسودگی بخش دیتے۔ یارم خان اس پرسکون منظر کا حصہ تو تھا، مگر اس کی نظریں ستاروں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کھانے کی خوشبو ہوا میں بکھری ہوئی تھی۔ انشا کے علاوہ وہاں سبھی موجود تھے۔ رتبہ بیگم دسترخوان پر ڈشز سیٹ کر رہی تھی۔ باسط خان یارم کے بالکل سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کی بے چین نظروں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی تجربہ کار آنکھیں یارم کے چہرے پر لکھے ملال کو پڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہے۔ اس کی خاموشی میں کتنے ہی سوالات سر اٹھا رہے تھے۔ رتبہ بیگم نے پیار سے یارم کی طرف دیکھا۔ چلو اب کھانا شروع کرو، تمہاری پسند کے کباب بنائے ہیں یارم۔ مگر یارم کی نظریں ایک بار پھر ان ستاروں کی طرف اٹھ گئی جہاں شاید ایزل کی بے رخی اور ابیرہ کی یادیں ایک ساتھ گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ باسط خان نے سامنے بیٹھے یارم کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر رتبہ بیگم کی طرف نظر اٹھائی۔ انشا کو بلوائیں۔ ان کے لہجے میں خاص مٹھاس تھی۔ جی میں ابھی بلا کر لاتی ہوں۔ یہ لڑکی بھی نا سب سے لیٹ کھانے کی ٹیبل پر آتی ہے۔ رتبہ بیگم نے مڑتے ہوئے یارم کے سامنے ڈشز سیٹ کی اور اس کے کندھے پر ممتا بھرا ہاتھ رکھا۔ آپ لوگ کھانا شروع کریں۔ یارم بیٹا جلدی سے کھاؤ، سارا کھانا تمہاری پسند کا ہے اور کچے قیمے کے کباب تو خاص تمہارے لیے بنائے ہیں۔ جی جی ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، آپ بے فکر رہیں۔ باسط خان نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے بھی آج کل صرف آپ کو اپنا ہی بیٹا نظر آ رہا ہے، باقی سب تو جیسے غائب ہو گئے ہیں۔ رتبہ بیگم کے چہرے پر ایک جانی پہچانی شرمندگی اور محبت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ انہوں نے باسط خان کی چوخی پر ہلکے سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اوہو، میں نے ایسا کب کہا ہے کہ آپ نہ کھائیں؟ آپ کے لیے بھی ہے، مگر یارم کے لیے آج ذرا اسپیشل انتظام کیا ہے۔ رتبہ بیگم ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، باسط خان کو باتوں پر یوں شرما جانے والی فرما بردار۔ ان کے درمیان کا یہ خوبصورت لحاظ برسوں گزرنے کے بعد بھی ویسا ہی تازہ تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر محبت بھری نظر یارم پر ڈالی اور پھر تیزی سے انشا کو لینے کے لیے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ پیچھے گارڈن میں اب باسط خان اور یارم اکیلے تھے۔ باپ کی تجربہ کار نظریں ابھی بھی بیٹے کے سپاٹ چہرے کا طواف کر رہی تھی، جیسے وہ اس خاموشی کے پیچھے چھپے طوفان کو ناپنا چاہ رہے ہوں۔ یارم نے پلیٹ کی طرف دیکھا، کبابوں کے اشتہار انگیز خوشبو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یارم نے اپنے ماں باپ کے درمیان اس خوبصورت نوک جھوک کو دیکھا تو اس کے سپاٹ چہرے پر ایک رشک بھری مسکراہٹ لہراتی۔ اس نے محبت بھری نظروں سے باسط خان کی طرف دیکھا جو ابھی تک مسکرا رہے تھے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کی کتنی خدمت گزار بیوی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں بابا، اور میری ماں کو تنگ مت کیا کریں۔ یارم کے لہجے میں ایک مٹھاس تھی۔ والدین کے اس بے ساختہ پیار کو دیکھ کر اس کے اندر کچھ سکون سا اترا تھا۔ شکر تو میں ہر لمحہ ادا کرتا ہوں یارم، باسط خان نے کہا، بس کبھی کبھی اسے چھیڑنے کا اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ ان کا کہکا گارڈن کی پرسکون فضا میں گونج اٹھا تھا۔ یارم کا جی چاہا کہ وہ ابھی اسی طرح زندگی کے رنگوں سے لطف اندوز ہو سکتا، کاش اس کے اپنے نصیب میں بھی وہی ٹھہراؤ ہوتا، وہی سکون، مگر اس کے اپنے حصے میں تو ایک ادھوری محبت اور ایک بے ساختہ بے رخ رشتہ سلیب بن کر لٹک رہے تھے۔ تبھی اندر سے انشا کی آواز آئی، لالا بارش رک گئی ہے، ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں کھانے کے لیے، جلدی کریں جلدی۔ اور اسے طوفان کی طرح چہکتی ہوئی گارڈن میں داخل ہوئی۔ اس کے جوش و خروش نے فضا کے بوجھل پن کو ایک جھٹکے سے میں اڑا دیا۔ رتبہ بیگم جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، بیٹی کی یہ بات سن کر تب ہی اٹھی تھی۔ استغفر اللہ، یہ تمہیں کب سے کرکٹ کا شوق چڑھ گیا ہے؟ مردوں والے شوق مت پالا کرو، چپ چاپ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اور دوبارہ اگر تم نے کسی میچ کی بات کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ رتبہ بیگم نے سختی سے ڈانٹا تو انشا نے فوراً مظلوم سا منہ بنا دیا۔ باسط خان نے موقع پا کر لقمہ دیا، چلو جی اب اس پر بھی پابندی عائد ہے۔ جی پابندی ہی ہے، لڑکی ہے تو لڑکیوں والے شوق پالا کرو۔ رتبہ بیگم نے گھور کر انشا کو دیکھا، ہاں تو میں نے صرف میچ دیکھنا ہے، کھیلنے تو نہیں جا رہی نا؟ انشا نے صفائی دینی چاہی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ جی سمجھ گئی۔ انشا نے برا سا منہ بسورا۔ انشا کے پاس اور کوئی آپشن ہوتا ہی کب ہے سوائے آپ کی بات سمجھنے کے۔ یا اس نے یارم کے ساتھ والی کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی۔ ماں بیٹی کی اس پیاری سی نوک جھوک کو دیکھ کر باپ بیٹے دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مت ڈانٹا کرے مرے سے، یارم نے نرمی سے کہا۔ کیا لالا؟ انشا نے فوراً منہ اٹھایا۔ اب آپ ماما یا اماں کہاں کریں؟ یہ مرے بہت پرانا لگتا ہے اب۔ یارم جو ابھی بھی ماں کی حمایت کر رہا تھا
इंशा के इस नए शोशे पर हक्का बक्का रह गया था। रुतबा बेगम ने हंसकर यारम की तरफ देखा, ये लो इसकी हिमायत करो अब। फिर वह इंशा की तरफ मुड़ी और तुम ये जहाँ लगा है ना, इसे वहीं लगा रहने दो, इसे बदलने की कोशिश मत करो। कभी मूरे, कभी अम्मा, कभी मामा, ये तुम रोज़ रोज़ मेरे नाम बदला मत करो। तुम्हारे पीछे लगकर इसे भी याद नहीं रहना कि इसने मुझे आखिर कहना क्या है। रुतबा बेगम इसकी मासूमाना झुंझलाहट पर यारम और बासिक खान दोनों के कह के निकल रहे थे। खाने की मेज़ पर का माहौल यकसर बदल गया था। क्या बाबा और लाला, आप दोनों भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? इंशा ने खफगे से बारे बारे सबको देखा, मगर इसकी अपनी आंखों में भी शरारत चमक रही थी। ना 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 मेरा बच्चा, तुम भला क्यों तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे। बासिक खान ने मोहब्बत लौटाती नज़रों से अपनी बेटी की तरफ देखा। यारम ने हल्के से मुस्कुराते हुए इंशा की तरफ देखा। इंशा तो हमारे घर की जान है, और अम्मा, मूरे मामा की बात तो दिल पर मत लिया करो। ये इनका प्यार है जो हम पर लुटाती हैं। इंशा ने छोटी सी नाक सिकोड़ी। यारम ने शरारत से जानबूझकर ये सारे नाम लेकर इसे छेड़ रहा था, और मेज़ पर एक बार फिर कहकों की गूंज उठी। रात की खामोशी में वो हंसी दूर दूर तक बिखर गई थी। इस घर की गर्माहट, ये चार लोग, ये लम्हा, सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे थे जो यारम के दिल में कहीं गहरे उतर रही थी। सब हंस रहे थे, खाने में मगन थे, मगर यारम के जहन में कुछ और चल रहा था। मैं तो ऐसी ही ज़िंदगी का तलबगार था, फिर क्यों नसीब नहीं हुई। फैमिली पूरी है, बस एक कमी है, एक जगह खाली है जिसे भरने के लिए तुम मैसर नहीं हो। एज़िल, क्यों नहीं समझती तुम कि तुम खुद अपने हाथों से ये रिश्ता ख़राब कर रही हो? क्यों माजी की धूल में खोई हो? अल्लाह ने कितना खूबसूरत रिश्ता दिया है, इसे संवारना चाहिए, इसे थामना चाहिए। तभी बासिक खान की नज़र इस पर पड़ी। यारम ने खुद को संभाला और बेसाख्ता हल्की सी हंसी अपने चेहरे पर बखेर ली, जैसे वो भी इसी महफिल का हिस्सा हो। मगर बासिक खान की आंखें जानती थी, वो पढ़ चुके थे कि इनका बेटा अभी यहाँ नहीं है, कहीं और है, किसी और दुनिया में। उन्होंने कुछ नहीं कहा। मेज़ पर हंसी मजाक जारी रहा। माहौल हल्का फुल्का था, मगर बाप की नज़र अपने बेटे पर टिकी रही। कुछ पूछना चाहते थे, मगर वो वक्त का इंतज़ार कर रहे थे।